Okay, so students, our today's topic is electric motor, and the principle of electric motor. If we concerning about the principle, so principle is the simple. The principle is very simple. That when we placed, when we placed any current carrying conductor, any current carrying conductor in magnetic field, current carrying conductor magnetic field in magnetic field, then field applies a magnetic force on the conductor, a magnetic force on the conductor, on the conductor. This is the simple principle. And why it is applying the force? Because we know that suppose if you know suppose this is a north pole of any magnet and this is a south pole of any, so we have taken two magnetic pole pieces, one is north pole and one is south pole. So obviously the magnetic field direction is in the direction of north to south. This north to south is the direction of magnetic field. And if I placed another conductor, if I placed a conductor within this magnetic field, if I placed any conductor within this magnetic field which have some current I, so we know that this wire will also produce its magnetic field in circular shape. Am I right? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Of course. Yes, sir. So definitely now we have two magnetic fields. Now we have two magnetic fields. One magnetic field is coming from pole pieces, and one magnetic field is coming due to current carrying wire, carrying wire. So since we have two magnetic fields, so definitely these two magnetic field will interact with each other, and this interaction causes a force. This interaction is the result of force, and that force is called magnetic force, or sometimes known as Lorentz force. The voice is coming too low. So so if we have two magnetic fields, one is coming from pole pieces and one magnetic field is coming from the current carrying wire. So due to interaction of these two magnetic fields, we have a resulting force, and this force is called Lorentz force or magnetic force. Is that clear to everyone? Please. Is that clear? Yes or no? Okay. Please give me CC in the chat box. Okay. So once you understood that how the force is acting, now we should decide that what will be the direction of force, what will be the direction of magnetic field, and what will be the direction of current. So that thing is coming from the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. And what is it rule? This rule says that if we have taken the thumb, forefinger and middle finger, suppose this is thumb
this is forefinger, and this is our middle finger. Middle finger in such a way that they are mutual perpendicular. They are mutual perpendicular. They are mutual perpendicular. So in this case, thumb will give you the direction of force, means magnetic force. Forefinger will give you the direction of magnetic field, which is known as B, and middle finger will give you the direction of current, which is I. So that's why I had told you that thumb, forefinger and middle finger, it is in the sequence of FBI. FBI. F for force, magnetic force. B means magnetic field. And I is current. Now the Fleming's second left hand rule is this clear to you? Please speak. Yes, sir. Okay. Shall we move ahead? Please give me CC in the chat box. Okay. Now the fact is, the value of this force, the value of this magnetic force F is equal to IBL sine theta. IBL sine theta. If L is the length of conductor, I is the current, and B is magnetic field, and theta is the angle between length and magnetic field. Suppose this is the length of the wire and magnetic field is going in this direction. Then this angle is theta. This is theta. So if theta equals to 90 degrees, for example, suppose theta equal to 90 degree, in that case we have used sine 90 and the value of sine 90 is +1, which is maximum, which means maximum. And if theta equal to 0 degree, in that case sine 0 is 0, which is minimum. तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता चली कि अगर जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर उसी डायरेक्शन में रखा हो, उसी एंगल के संग रखा हो जिस एंगल या जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, या ऐसे समझें, अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल 0 है, उस केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी और तब फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा 0 होते ही फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी IBL, यानी मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, और मिनिमम कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्लीज़ गिव मी CC इन दी चैट बॉक्स। ये एंगल कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है उस समय फोर्स मैक्सिमम होगा, और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है उस समय फोर्स मिनिमम होगा। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि कैसे ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है। आप समझिए इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, आप इलेक्ट्रिक मोटर में करते क्या। सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, और मान लीजिए ये मोटर अभी आपके घर के उस हिस्से में लगी है जहाँ पर आप अंडरग्राउंड वाटर हार्नेस करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को आप अपने घर में किसी टैंक तक पहुँचाते हैं इसी मोटर की हेल्प से। सो व्हाट इज़ द मेन सप्लाई फॉर दिस मोटर?
Obviously you use electric supply. You connected this electric motor with some kind of electric supply, and then you connected the shaft of this motor to the underground pump, Suppose this is a ground level water, this is a, and यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, ये आपके घर की बोरिंग है, ये जो पाइप है ये आपके घर की बोरिंग है, बोरिंग कहते हैं ना, तो वो जो उसकी शाफ्ट है वो आप उसे बोरिंग से कनेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट, सो नाउ यू हार्नेस दिस वाटर by connecting some connecting pipes, and then you can take it to anywhere in your house and you can store in a big tank. यही तो सिस्टम यूज हो रहा है, हाँ ना बोलो भाई, यस और नो? यस सर. यही सिस्टम, Yes, हाँ sir. यही सिस्टम तो यूज कर रहे हो ना घरों में. अब समझो, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड थी, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया है और वाटर को पंप किया है, वाटर को पंप किया है अंडरग्राउंड से, हम उसे टैंक में ले गए हैं, यानी हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके लेकर काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इसको चेंज किया है, टैंक तक पहुंचाया है, यानी हमने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर. अक्सर बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है दैट विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर ही इलेक्ट्रिक सप्लाई लेती है, करंट लेती है, करंट कंज्यूम करती है, उस बेस पर वो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती है और पाइप और आपके पानी को अंडरग्राउंड से हार्नेस करके टैंक तक पहुंचाता है. इसी के ठीक उल्टा ले लो, कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. जैसे अगर आपके घर में कूलर है तो कूलर में भी मोटर है, तो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करती है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में, और उसी मैकेनिकल एनर्जी से आपके कूलर के ब्लेड्स घूमते हैं और उन ब्लेड्स के घूमने की वजह से आपको हवा मिलती है. सेम मोटर आप कहीं भी ले सकते हैं, सीलिंग फैन में भी यही मोटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी मैकेनिकल एनर्जी से आपके सीलिंग फैन के ब्लेड्स घूमते हैं और आपको हवा मिलती है. यही सिस्टम चल रहा है. नाउ द पॉइंट इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स इन दिस डिवाइस. जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है या जो F = BIL sin थीटा है, वो किस तरह काम कर रहा है, यही हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है. चलिए, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है इसका इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है. अब इस इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में आप ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो चीज़ है, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो आपके पास पावर सप्लाई होनी चाहिए, फील्ड मैग्नेट्स, आर्मेचर कॉइल और ब्रशेस. हालांकि इसके बाद कम्यूटेटर हैं, रोटर हैं और भी कई डिवाइसेस हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनमें इसी की रिक्वायरमेंट होती है. अब आप देखें, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल पीस रखा हुआ है, नॉर्थ रखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ साउथ नहीं है, साउथ होगा, ऑफ कोर्स साउथ पोल भी है यहाँ पर, ठीक है. ऐसा नहीं कि यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ नहीं है, तो यहाँ नॉर्थ पोल भी होगा. तो ये चीज़ अंडरस्टूड है, आप समझते हैं इस चीज़ को. अब देखिए, इस ये जो येलो कलर की आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, यही कॉइल हमारी आर्मेचर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं हम इस सप्लाई की हेल्प से. ये है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है. ये है हमारी आर्मेचर कॉइल, ये हैं हमारे ब्रशेस और ये होते हैं फील्ड मैग्नेट्स. ये फील्ड मैग्नेट्स. बात क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो भाई फटाफट, यस और नो. क्लियर है सबको बात? यस सर. हाँ, देखो कहना है बेटा, हाँ लगातार बोलते रहो, बीच में हाँ हाँ करते रहो, या अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत बोलते रहो, ठीक है. और जो कमेंट, जो चैट बॉक्स है हमारा अपना गूगल मीट का, उसमें भी आंसर अपने देते रहना, ठीक है. अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ा है तो भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
अब मान लो, देखो अब हमारी इस कॉइल में सपोज ये कॉइल अभी इस लेंथ की हम बात करें, अगर इस लेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के बीच में कितना एंगल बन रहा है जरा बताएं। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल बन रहा है, फिर से समझिए। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। हम इसको अगर 90 हम इसको अगर नाम दे दें, जैसे हमारी ये मान लो ये कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल है, इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो अभी हम बीसी ब्रांच की बात कर रहे हैं, ब्रांच बीसी। ब्रांच बीसी का, और ये ग्रीन जो लाइंस हमको दिख रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के संग ब्रांच बीसी कितने एंगल का एंगल बना रही है बताओ, थीटा, है ना। थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है, फटाफट बोलो। अरे अभी बोला तो था, सही बोला था, बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि साइन 90 की वैल्यू 1, यानी इस केस में फोर्स की वैल्यू होगी आई बी एल, जो कि लग ही रहा है, ये फोर्स F लग रहा है, आई बी एल। अच्छा, दूसरी ओर ये हमारी जो ए डी ब्रांच है, ये भी तो 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये क्या बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। अब है क्या, स्थिति कुछ ऐसी है, कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो कॉइल है वो उसके एक समय में उसके सिर्फ दो साइड में ही फोर्स लगता है। एक समय में सिर्फ दो डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, ऐसे। तो अगर ये फोर्स है आई बी एल, अब ये फोर्स भी आई बी एल है। अब आप जरा सोचें, अगर आपके हाथ में पेन होगा, आप अपने पेन को अपनी कॉपी पर रख दीजिए और इक्वल फोर्स लगाइए, एक इस तरफ एक इस तरफ, और आप बताइए कि इसकी मोशन कैसी होगी। ये सीधी सीधी मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, या रोटेशनल मोशन करेगी। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर करेगी, रोटेशनल करेगी, सर्कुलर करेगी, रोटेशनल करेगी, यस। ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जब इक्वल कपल ऑफ फोर्स लगता है तो ये हमारी बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये कॉइल रोटेट होती है, ये कॉइल रोटेट होती है। तो रोटेशन की वजह क्या है, रोटेशन की वजह है ये मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल। सो कॉन्स्टेंटली यही सिचुएशन लगातार आती है। अच्छा, जब हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये घूम के नीचे आएगा, जब हमारी ये कॉइल घूम कर नीचे आ रही होगी, उस कंडीशन में हमारी जो ए बी ब्रांच है और जो सी डी ब्रांच है वो ठीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी। पैरेलल की स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस वजह से फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो उस ब्रांच पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो किसी भी आर्मेचर कॉइल में, मोटर में जो आर्मेचर कॉइल होती है उसमें उसकी सिर्फ दो ब्रांच पर ही फोर्स लगता है, वो भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से हमारी कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाती है बहुत स्पीड के साथ। और जब इसी रोटेट होती कॉइल से हम कोई शाफ्ट जोड़ देते हैं, चाहे वो शाफ्ट किसी पंप की हो या ब्लेड्स की हो, तो वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को उस वर्क में कन्वर्ट कर देता है जो हम चाहते हैं, चाहे पानी खींचना हो या हवा लेना हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। बात क्लियरली समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे कर रहा है? यहाँ तक देखो सबको क्लियरली समझ में आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो इसी के बाद जो नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन है वो एक ग्लिम्स है, एक कंबाइंड ग्लिम्स है फोटो, आप उसको भी चाहे तो डेली देख लीजिएगा। जैसे इसमें ये बताया गया है कि कैसे कंडक्टर होता है तो फोर्स लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फिर कॉइल जब चलती है तो अब आप देखो इस फोर्स में, आप यहाँ पर देखो तो देखो एक ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है और ये फोर्स एक डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसीलिए तो ये रोटेट हो रही है कॉइल बार बार। ये देखो, एक ये फोर्स अपवर्ड और एक ये फोर्स
डाउनवर्ड, जिस वजह से कॉइल रोटेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमती है और हमें जो भी वर्क है, जो भी फोर्स है, वो इस तरह मिलने लगता है, कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक वर्किंग स्ट्रक्चर मैंने आपको जो है बताया इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। आई होप इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझ लीजिए वर्किंग वगैरह कि भाई हमारा जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने की क्यों वजह है, फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है पोल्स की वजह से, और एक फील्ड है करंट की वजह से। ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं, जिस वजह से फोर्स जनरेट होता है, जिसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। बात क्लियर है? अब उसके बाद लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वो हमें बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें करंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें किस रूल से पता चलती है? तो वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की हम कुछ इस तरह एक्सपेंड करें कि वो आपस में 90 डिग्री पे हों, तो थंब फोर्स को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को। जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी और मिडिल फिंगर करंट को बताएगा। इस तरह तो हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। अब आगे हैं कि जो फोर्स है वो किस तरह अपनी वैल्यूज़ बदलता है। तो वो बदलता है कॉइल की एंगल के बेस पर। हमारी जो आर्मेचर कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के संग कैसा एंगल बनाएगी, उसी बेस पर हमारी फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर फोर्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो फोर्स मिनिमम। अच्छा, एक और इसमें केस है कि जैसे जैसे वैल्यू आप 90 होती है जब फोर्स की और कॉइल रोटेट होना शुरू होती है, तो 90 से वैल्यू धीरे धीरे घटने लगती है और 0 हो जाती है, फिर 0 से धीरे धीरे बढ़ती है और 90 हो जाती है। तो फोर्स की वैल्यू भी लगातार घटती और लगातार बढ़ती रहती है। यही क्रम लगातार चलता है, जिस वजह से कॉइल कॉन्टिन्यूसली रोटेट होती रहती। एंड देन हम लोगों ने सिस्टम समझा था कि इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक सिस्टम होता क्या है, ये करता क्या है, ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, पावर सप्लाई, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस। यही डायग्राम नॉर्मली आपकी बुक्स में भी मिलता है, यही सर्किट भी है और यही स्ट्रक्चर भी है। ओके, एंड दिस इज़ द एट अ ग्लांस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप कि यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। एंड आई विल अपलोड दिस Google Meet on YouTube. Okay, it will hardly take a 1 hour. After 1 hour you can watch this whole explanation again and again, as much as time you can want. Okay, there is no problem. So okay students, if you have any problem then you can ask me. Yes, is there is any doubts or questions or queries, please? Okay, thank you students, thank you so much. Thank you, sir. Thank you.